Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Here I am Upend Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter triangle for class 9th. In previous class we had learned congruent of triangles, theorems related to congruent of triangles in chapter triangle. Today we will learn exercise 7.1 from NCERT. So let us start. So in exercise 7.1, the first question is in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A, then so that triangle ABC congruent to triangle ABD. And what you can say about BC and BD. Here the diagram is according to the given diagram, and in given you can write in quadrilateral ACBD, AC is equal to AB, which is given, and AB is bisector of angle A. To show that triangle ABC congruent to triangle ABD, and also what you can say about triangle BC and BD. In explanation, take the two triangles which we have to prove congruent. In triangle ABC and triangle ABD, AC is equal to AD, which is given. AB equal to AB is the common side, and angle ACB equal to CAB equal to DAB, since AB is the bisector of angle, and you know that if a line bisect an angle, bisect means two equal parts, bisect जो होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. Thus triangle ABC congruent to triangle ABD by side angle side congruency. And when the two triangles are congruent, then their remaining parts are also equal. So you can say BC is equal to BD by CPCT shown. Now in question number 2. In question number 2, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. AD side is equal to BC given है. Angle DAB यहाँ ये एंगल एंड एंगल CBA ये एंगल इक्वल दिया है. हम लोग को यहाँ पे तीन चीज़ों को प्रूफ करना है. फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, सेकेंड BD इज इक्वल टू AC, एंड थर्डली एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC. तो यह फिगर है ABCD क्वाड्रेटल है जिसमें AD जो है इज इक्वल टू BC गिवन है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA एंगल भी इक्वल दिया हुआ है. टू प्रूव डैट ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC, BD equal to AC and angle ABD equal to BAC. तो फर्स्टली in proof in triangle ABD and triangle BAC हम लोग ट्रायंगल ABD को लेकर चलते हैं एंड BAC को लेकर चलते हैं. तो AD इक्वल टू BD जो कि गिवन है. ट्रायंगल ABD में AB साइड एंड BC गिवन है. एंगल ADB इज इक्वल टू CBA भी गिवन है, एंड AB इक्वल टू BA इज द कॉमन साइड ऑफ द बोथ ट्रायंगल. So triangle ABD congruent to triangle BAC by side angle side congruency, and when the two triangles are congruent then their corresponding remaining parts are also equal. So you can say BD equal to AC. In first triangle BD equal to AC and angle ABD equal to BAC by CPCT. Next question number 3. AD and BC are equal perpendicular to a line AB. AB पर BC एंड AD जो है परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है. शो करना है CD बाइसेक्ट्स AB, यानी CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है. दैट मीन्स OA इक्वल टू OB हम लोग को शो करना है.
तो यहाँ पर यह डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम है एंड गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है। तो शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इन एक्सप्लेनेशन, सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और बी सी भी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, सो ए बी बी सी पैरेलल टू ए डी होगा एंड ऑल्सो सी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री जो कि गिवन है। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन दिया हुआ है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी जिसको हम लोग प्रूफ किए हैं। इस तरह से ट्रायंगल बी ओ सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से होगा। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस प्रकार से ओ ए इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी होगा, दैट इज सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इस तरह से सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आइए देखते हैं। In question number 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. L और M जो है अब parallel lines दिया है और दोनों जो है वो intersect हो रहा है PQ and QR के द्वारा जो कि parallel है। So that triangle ABC congruent to triangle CDA. तो given में L parallel to M and P parallel to Q दिया हुआ है। तो so that triangle ABC congruent to triangle CDA. Explanation, in triangle ABC and triangle CDA में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA अल्टरनेट एंगल होंगे। वैसे ही एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ADAC होगा अल्टरनेट एंगल से, एंड AC इक्वल टू CA कॉमन साइड है। इस तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर दिया हुआ है। BP and BQ are perpendicular on the arms of angle A। तो शो करना है कि ट्रायंगल APB congruent to ट्रायंगल AQB and BP equal to BQ। तो यहाँ पर L is the bisector of एंगल A दिया हुआ है गिवन में, BP परपेंडिकुलर टू AM एंड BQ परपेंडिकुलर टू AN भी दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर आर्म्स को M और N, AM और AN ले लिए हैं। शो करना है उसको हम लोग नोट डाउन किए। एक्सप्लेनेशन में बोथ ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB में तो एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAQ जो कि गिवन है, क्योंकि L जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बाइट रहा है। AB इक्वल टू AB जो होगा वो कॉमन साइड हो जाएगा बोथ ट्रायंगल में, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री। इस तरह से ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। 10 BP इक्वल टू BQ CPCT से शो होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।